the next stage in the battle between the Aam Aadmi Party and Lieutenant Governor Najib Jung. Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, has sent 5 officers on deputation to the Anti-Corruption Bureau of the Delhi Police. Now, you'd recall that the Delhi High Court had said that till the time the court takes a decision, the Lieutenant Governor will reign supreme in all matters of policy making, in all matters of transfers and postings. Despite what the court ordered, Arvind Kejriwal has gone ahead and brought these officials from Bihar. Not just these officials, Manish Sisodia has been in touch with other chief ministers, for example, the Chief Minister of Uttarakhand. Now the question is, are Modi's foes coming together around Arvind Kejriwal? Is this a big gang up where people who are opposed to Narendra Modi coming together with Arvind Kejriwal to try and take on the BJP government? Here's more. A fresh face-off. The Delhi government Lieutenant Governor turf war escalating. The flashpoint this time, the deputation of 6 police officers from Bihar to join the Anti-Corruption Bureau in Delhi. The move came soon after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal spoke to Bihar Chief Minister Nitish Kumar, and it sparked off a major political storm. What is their expertise in this? The Lieutenant Governor's office immediately sent across a media release exerting his jurisdiction over the Anti-Corruption Bureau and appointments in the police branch. And he was quick to get the centre's backing. मुझे लगता है नीतीश कुमार जी थोड़ा कानून पढ़ते लिखते हैं, तो अगर हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी, तो उस प्रक्रिया की अवहेलना करके उन्होंने पदाधिकारियों के पदस्थापन का फैसला कैसे किया? The opposition too jumped into the fray. अफसरों में भेदभाव पैदा करना, एक और तरह के बखेड़े की राजनीति, एक और कन्फ्रंटेशन की राजनीति केजरीवाल साहब करने में विश्वास रखते हैं. Each is standing on ego. No solution is in sight. Amidst all this, the victim, the voiceless, faceless victim is the citizen of Delhi. But Deputy Chief Minister Manish Sisodia set aside opposition's charge and justified the Delhi government's move. देखिए, दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर है और एसीबी के पास पूरी पावर है कि वो देश में कहीं से भी पुलिस कर्मियों को ले सके, और पहले भी होता रहा है. लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया हर चीज को. The fight in Delhi resonated even in Bihar. मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित नहीं है कि अपने राज्य की चिंता छोड़कर हम दूसरे राज्यों की चिंता करें. इसलिए बिहार सरकार को उन अधिकारियों को वापस बुलाना चाहिए और करप्शन के खिलाफ में जो अभियान हम लोग के रहते छिड़ा गया था, उस अभियान में गति लाया जाना चाहिए. As the Delhi jung intensifies, India today has learned that the Delhi government will go ahead with the induction of police officials from Bihar. Not just that, the Delhi government has also requested for 36 police officials from the states of Uttar Pradesh, West Bengal and Uttarakhand to bolster the Anti-Corruption Bureau in Delhi over the next 15 days. As both the sides stick to their interpretation, calling the move of the other politically motivated, this latest controversy is not the end of the bickering. And amidst all this, people of Delhi are waiting in hope for better sense to prevail, for better governance of Delhi. In New Delhi with camera person Syed Bakar, Ankit Tyagi for India Today. I want to go across now to senior Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh. He's joining us on the newsroom. Mr. Singh, the Aam Aadmi Party has brought in 5 officials for the anti-corruption branch of the Delhi police from Bihar. Now, at a time when the courts have said that till the time a final decision has taken, the Lieutenant Governor is supreme when it comes to postings and transfers, why would the Aam Aadmi Party go and take such a decision? Why don't you just wait, sir, for the court's decision to come out? Why are you trying to precipitate the crisis, Mr. Singh? देखिए, मुझे लगता है कि एसीबी के मामले में ये विवाद अभी से नहीं, काफी समय से चल रहा है. जब हम लोगों ने पिछली सरकार में मुकेश अंबानी के खिलाफ मुकदमा लिखा था, जब उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद भी एक नोटिफिकेशन हाई कोर्ट का आया था. और मैं इस बात को आपके एक चैनल पे कोट कर रहा हूं, जब दिल्ली में सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, जो नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री का आया था, उसमें खुद नोट है एलजी साहब का, जब जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, डीडीए को, पुलिस को एसीबी
कि एसीबी की जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। तब वो वकालत कर रहे थे इस बात की। जब दिल्ली में सरकार बन गई, हमने कार्रवाई करना शुरू किया अधिकारियों पर, बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। पुलिस के जो भ्रष्ट अफसर थे, कर्मचारी थे, उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। उसमें सरकार कोर्ट में, उसमें पुलिस वाले जब कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया उसको आप पढ़ लीजिए। हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि एसीबी की जांच के दायरे में केंद्र सरकार की पुलिस और केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है नहीं नहीं, सवाल अलग है संजय जी, आप सवाल को घुमा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एसीबी की जांच के दायरे में आते हैं कि नहीं। सवाल यह है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर के किसी मामले पर नियुक्ति कर सकती है दिल्ली सरकार बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के इजाजत के। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन साफ है, आप नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। राहुल जी अलग अलग क्यों कर रहे हैं? पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। को राहुल जी अलग अलग क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप दोनों चीजों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? पुलिस जो है वो सीधे तौर पे एलजी के अंडर में है, लैंड एलजी के अंडर में है, पब्लिक ऑर्डर एलजी के अंडर में है, एसीबी दिल्ली सरकार की है। एसीबी में कभी भी एक उदाहरण आप बता दीजिए जब इस लेवल के अधिकारी की नियुक्ति एलजी की मंजूरी से हुई हो। और मैं आपको दिल्ली पुलिस का भी बता देता हूं, यहाँ तो साफ साफ पॉलिटिक्स हो रही है ना राहुल जी। संजय जी, यहाँ तो साफ साफ पॉलिटिक्स हो रही है। मेरी बात सुनिए, यहाँ तो साफ साफ इंस्पेक्टर और मेरी बात तो सुनिए, यहाँ तो साफ साफ पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि आप नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार से बनती नहीं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जाए, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मोदी को दिक्कत हो। इस वजह से अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार में साठगांठ हो जाती है। आप बिहार से ही चुनकर एसीबी के क्यों ऑफिशियल्स को लेके आए? लोगों को पॉलिटिक्स नजर नहीं आती इसमें। किस प्रकार के मजाक और हास्यास्पद बातें सुबह से भाजपाई कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है। उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी दिल्ली सरकार में है, क्या आपको मालूम है? अंडमान के अधिकारी दिल्ली सरकार में है, सीआईएसएफ के अधिकारी दिल्ली सरकार में है। हरियाणा काडर के संजीव चतुर्वेदी को हम बार बार मांग रहे हैं कि एक ईमानदारी अधिकारी को हमें दे दीजिए, उसके लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। तो ये पूरी जो मोदी जी की सरकार है, इसको साफ तौर पे भाजपाइयों को संजय कहना जी चाहिए बहुत फर्क है जो आप कर रहे हैं और बाकी अधिकारियों को संरक्षण देना चाहते हैं। बाकी स्टेट्स के ऑफिशियल्स का दिल्ली में आके काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रॉब्लम है कि जैसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की आज नोटिफिकेशन आई है, जो नोटिस आया उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि एसीबी दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा है, इस वजह से ये सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में चलता है। ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कह चुकी है और कोर्ट भी कह चुकी है कि फिलहाल यही पोजीशन बरकरार रहेगी। जो आप लोग कर रहे हैं वो कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने कहा ना कि लेफ्टिनेंट, अरे सर कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो प्राइमेसी है वो बरकरार रहेगी। एसीबी ने, ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं जी। सर्विसेज के मामले में अलग से दिल्ली की सरकार गई थी जिसमें कोर्ट ने अलग ऑर्डर किया है। एसीबी के मामले में हाई कोर्ट ने अलग ऑर्डर किया है। एसीबी के मामले में जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको आप पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच एसीबी कर सकती है। एसीबी किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। शकुंतला गामलिन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है जिसमें वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का दबाव डाला। ये शकुंतला गामलिन ने चिट्ठी में लिखा है। तो आपके मंत्री कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं? ये तो पहले मंत्री भी करते थे। हास्यास्पद बचकाना, राहुल जी आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, हास्यास्पद बचकाना, निराधार और एक आदमी को बदनाम करने वाला आरोप है। ये फ्री होल्ड करने का बाकायदा 2015 का, और आप अभी अपने चैनल पे मंगा लीजिए, बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है। फ्री होल्ड करने की बात अपनी विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा है। अब वो कह रहे हैं कि साहब सत्येंद्र जैन ने बड़ा गुनाह और गलती कर दी। इस प्रकार से बायस्ड होकर क्यों काम कर रहे हैं?